Hello students. So today we are going to discuss the hormones of pituitary glands. First of all we will discuss about pituitary gland and its relation with the hypothalamus. So pituitary gland is also called the hypophysis. It's a small gland about 1 centimeter in diameter, and if we talk about the weight, it's about 0.5 to 1 gram. So it's located at the base of the brain, or we can say that uh, it is mainly lies in the hypophyseal fossa of the turcica of the sphenoid bone. It attached to the hypothalamus by a stalk, the infundibulum, and has two anatomically and functionally separate portion. So you can see here uh, its location. So it is located just beneath the brain, and it is a diameter of 0.1 to 1.5 centimeter and lies in the hypophyseal fossa. So this is the hypophyseal fossa of the sella turcica of the sphenoid bone, and it is attached to the hypothalamus by a stalk that is called the hypophyseal stalk, or we can also call it as the infundibulum. It's a funnel like structure, and anatomically it has divided into two separate portion, the anterior portion and the posterior portion. So this is the anterior portion and this is the posterior portion. Now uh, the anterior portion of the pituitary gland is also called adenohypophysis. तो जो anterior part है, जो इंटीरियर पार्ट है उसको एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है. सो बिटवीन these is a small relatively avascular zone called the pars intermedia, absent in the human being but is much larger and much more functional in some lower animals. तो आपको ये बीच में दिख रहा है, that is the pars intermediata. So this pars mediata mainly release the hormone that is the melanin. तो ह्यूमंस में ये कम रहता है, बट बाकी जो एनिमल्स है उनमें वो ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो मेलेनिन का रोल बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन. सो द एंटीरियर पिट्यूटरी जो लोब है, जिसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, तो इसका जो साइज है, इट एक्यूर्स अबाउट 75% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ग्लैंड. तो 75% जो वेट है उस ग्लैंड का, दैट इज़ हमने आपको पहले बताया था उसका वेट कितना है. तो उसमें जो 75% जो वेट है वो किसका है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का है. और अगर हम बाकी जो रिमेनिंग 25% है, दैट इज़ द पार्स इंटरमीडिएटा एंड जो पोस्टीरियर लोब है. So the anterior pituitary consists of two parts in an adult. The pars distalis is the larger portion, and the pars tuberalis forms a sheet around the infundibulum. तो आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे जो ये शीट लाइट स्ट्रक्चर है, सो दिस इज़ द pars tuberalis. और अगर हम बात करेंगे इस साइड की, सो दिस इज़ द पार्ट डिस्टालिस. तो जो लार्जर पोर्शन है, सो दिस इज़ द पार्स डिस्टालिस, और जो ये इनफंडिबुलम के पास या हाइपोथैलेमस हाइपोफाइशियल स्टॉक के पास जो आपको दिख रहा है, सो दिस इज़ द पार्स pars tuberalis. Okay, so this pars tuberalis will form a sheet around the infundibulum. So if you talk about the posterior pituitary lobe या posterior pituitary, it's also called as neurohypophysis, जो मैंने आपको पहले कहा. So it also consists of two parts, that is the pars nervosa, the larger bulbar portion, and the
इनफंडिबुलम, जो ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है दैट इज़ द पार्ट इनफंडिबुलम, और जो नीचे जो आपको ये बल्जिंग रीजन है दैट इज़ द पार्स नर्वोसा, ठीक है। सो अ थर्ड रीजन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड द पार्स इंटरमीडिएटा atrophies during human fetal development and ceases exist as a separate lobe in adults, ठीक है। तो ये जो बीच में दिख रहा है पार्ट इंटरमीडिएटा, तो ड्यूरिंग ह्यूमन फीटल डेवलपमेंट तो वो पहले प्रेजेंट होता है, बट धीरे धीरे वो एज ए सेपरेट लोब नहीं रहता है, वो एंटीरियर लोब के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। So, however, some of its cell migrate into the adjacent parts of the anterior pituitary where they persist। तो ये anterior pituitary में चला जाता है और ये anterior pituitary में ही रहता है। बट बाकी जो एनिमल्स है ह्यूमंस को छोड़ के दूसरों में वो पार्ट्स इंटरमीडिया वैसे कि वैसा रहता है। सो अगर हम बात करेंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स की, सो द सिक्स हार्मोन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी प्ले मेजर रोल इन द कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन थ्रू आउट द बॉडी। तो जो इंटीरियर पार्ट है दैट इज़ द एडिनो हाइपोफाइसिस, इट सिक्रीट्स सम हार्मोन्स, मेनली सिक्स हार्मोन्स ये सिक्रीट करता है, विच इंक्लूड्स द ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन एंड गोनेडोट्रोपिन, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है। तो दीज हार्मोन्स आर रिलीज बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे, सो इट ऑल्सो सिक्रीट सम हार्मोन, मेनली एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। सो इफ वी टॉकिंग अबाउट द एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनोहाइपोफाइसिस, so adenohypophysis means adeno means gland. It's derived from a Greek word. Adeno means gland and hypophysis means undergrowth. So this secretes a hormone that regulate a wide range of bodily activities from growth to reproduction. तो growth hormone आपको पता है growth में पार्टिसिपेट करेगा। अगर हम जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की बात करेंगे तो वो रिप्रोडक्शन में दैट इज़ अ गेमेटोजेनेसिस, या जो oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये भी मेनली जो बॉडी के सल्यूट्स हैं या बॉडी के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या बॉडी जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। अगर हम प्रोलैक्टिन की बात करेंगे तो ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो अगर हम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हैव 5 types of cell. So those cells are somatotropes, corticotropes, thyrotropes, gonadotropes and lectotropes। तो जो ये सोमेटोट्रॉप्स है ये क्या सिक्रेट करता है, इट सिक्रेट्स द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन जिसको कहा जाता है। सो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इन टर्न स्टिमुलेट सेवरल टिश्यू to secrete insulin-like growth factors, hormone that stimulate general body growth and regulate aspect of metabolism। तो ये जो सोमेटोट्रॉप्स है वो नॉर्मली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। अब ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जाके डिफरेंट सेल्स पे अपना एक्शन शो करता है और वो और दूसरे हार्मोन्स को रिलीज़ कराता है, जैसे कि इंसुलिन लाइक जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, या उन हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है जो नॉर्मली बॉडी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे जो इसके परसेंटेज की, जो मैक्सिमम 30 to 40% जो सेल्स हैं एडिनो हाइपोफाइसिस में, दोज आर द सोमेटोट्रॉप्स। उसके बाद दूसरा है दैट इज़ द कॉर्टिकोट्रॉप्स। तो अगर हम कॉर्टिकोट्रॉप्स की बात करेंगे तो जो कॉर्टिकोट्रॉप्स है वो मेनली एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज़ करता है, दैट इज़ द ACTH, और कॉर्टिकोट्रोपिन भी उसको बोला जाता है। सो विच स्टिमुलेट्स द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ये मेनली जो कॉर्टिकोट्रॉप्स है या एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन है वो आपके एड्रिनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है, जो किडनी के ऊपर रहता है। वहाँ पे जाने के बाद और दूसरे हार्मोन्स का रिलीज़ कराता है, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, वैसे उन हार्मोन्स को रिलीज़ कराता है। तो सम जो कॉर्टिकोट्रॉप्स है रेमिनेंट्स ऑफ द पार्स इंटरमीडिया ऑल्सो सिक्रीट्स
साइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसी कोर्टिकोट्रॉप्स में जो हमने कहा था पार्स इंटरमीडिया में से कुछ सेल्स इस इंटीरियर लोब में फ्यूज़ हो जाता है, तो वो इस कोर्टिकोट्रॉप्स के साथ प्रेज़ेंट रहता है और मेनली ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है, दैट इज़ अ मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। सो अगर आपको किसी ने पूछा कि मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ कौन करता है, तो नॉर्मली अगर हम दूसरे एनिमल्स की बात करेंगे तो दूसरे एनिमल्स में पार्स इंटरमीडिएटा करता है, ठीक है, दैट इज़ अ मीडियल लोब। बट अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस में ये जो कॉर्टिकोट्रॉप्स के साथ ये फ्यूज़ हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि कॉर्टिकोट्रॉप्स में कुछ सेल्स रहते हैं जो पार्स इंटरमीडिया का रेमिनेंट्स हैं, तो ये सीक्रेट करता है मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो अगर हम इस सेल्स की बात करेंगे तो ये 20% जो सेल्स है ये एक्यूमुलेट करता है। देन उसके बाद थायरोट्रॉप्स, तो थायरोट्रॉप्स मेनली क्या सीक्रेट करता है, दैट इज़ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो एक्ट कहाँ कहाँ पे करता है, आपके थायराइड ग्लैंड्स पे करता है, और थायराइड ग्लैंड्स पे एक्ट करने के बाद थायराइड ग्लैंड से और दूसरे हार्मोन्स का सिक्रेशन कराता है, दैट इज़ द थायराइड T3 एंड T4, दैट इज़ द ट्राई आयोडो थायराइड एंड ट्राई टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन, ठीक है। तो थायरोक्सिन का रिलीज़ कराता है कौन, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो उसके बाद नेक्स्ट जो सेल है दैट इज़ द गोनेडोट्रॉप्स, आपको नाम से पता चल रहा है गोनैड, ठीक है। तो गोनाड से जो गोनाड है उसको कंट्रोल करता है, तो ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो आपके गोनाड पे जाके एक्ट करेगा, और मेनली जो प्रोसेस है दैट इज़ द स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, वहाँ पे जाके उस प्रोसेस को ये रेगुलेट करता है, ठीक है। तो मेनली जो गोनेडोट्रोपिन्स है या गोनेडोट्रॉप्स है वो दो गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन रिलीज़ करता है, दैट इज़ द वन इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या रोल है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या रोल है। उसके बाद जो फिफ्थ सेल है दैट इज़ द लेक्टोट्रॉप्स। लेक्टो मीन्स ग्रीक वर्ड है मिल्क, सो दिस लेक्टोट्रॉप्स मेनली सीक्रेट द हार्मोन दैट इज़ द प्रोलैक्टिन, जो क्या करता है, इनिशिएट्स मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है कहाँ पे, मेमोरी ग्लैंड्स में जाके, ठीक है। सो दीज आर द सम सेल्स विच आर present in the mainly in the anterior pituitary gland। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हार्मोन्स है दैट इज़ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि थायरोट्रोपिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो ग्रोथ हार्मोन जाके मेनली इसके ग्रोथ पे एक्ट कर रहा है। अगर हम कॉर्टिकोट्रोपिन की बात करेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है। अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का बात करेंगे या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करेंगे तो या तो ओवरी पे एक्ट करेगा या तो टेस्टिस पे एक्ट करेगा। अगर हम प्रोलैक्टिन की बात करेंगे तो प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा और मिल्क प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एक करके। तो अब देखो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ द एंटायर बॉडी बाय अफेक्टिंग प्रोटीन फॉर्मेशन कराता है, बोन फॉर्मेशन कराता है, सेल मल्टीप्लिकेशन कराता है, सेल डिवीजन कराता है, सेल डिफ्रेंशिएशन कराता है, ठीक है। अगर हम ACTH की बात करेंगे तो ये मेनली एड्रिनल ग्लैंड को एक्ट करता है और वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करके मेनिनोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का रिलीज़ कराता है, जिससे जो मेटाबॉलिज्म है उस पर इफेक्ट होता है, मेनली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे, फैट मेटाबॉलिज्म पे ये एक्ट करता है। अगर हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करेंगे तो ये मेनली थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और वहाँ से थायरोक्सिन के रिलीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। T3 और T4 के रिलीज़ को कंट्रोल करता है और मेनली जो इंट्रासेलुलर केमिकल रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करता है, जो मेटाबॉलिक रेट्स है उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है या लिपिड मेटाबॉलिज्म है, उसको ये थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। और अगर हम प्रोलैक्टिन की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया मेनली जो मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करता है और मिल्क प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। और अगर हम FSH की बात करेंगे और LH की बात करेंगे तो अभी बताया आपको ओवरीज और टेस्टिस पे ये एक्ट करते हैं और जो भी प्रोसेस है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis उसको वो ये कंट्रोल करता है और जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है उसको ये हार्मोन कंट्रोल करता है। अगर हम ADH की बात करेंगे तो विच इज़ रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब। तो ADH क्या करता है, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, आपको नाम से पता चल रहा है। आपके अगर आपके बॉडी में वाटर की कमी है तो ये यूरिन में
वाटर को रिज्यूम करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है ताकि आपकी बॉडी से वाटर रिलीज़ ना हो, ठीक है। अगर ऑक्सीटोसिन मेनली मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और मेनली जब डिलीवरी होती है बच्चों की तो उस टाइम पे ये जो मसल्स हैं, जो विजाइना में या जो यूट्रस में मसल्स है उसके रिलैक्सेशन में ये हेल्प करता है ताकि जो बच्चा है वो प्रॉपरली डिलीवर हो, और साथ में जो पेन होता है ड्यूरिंग अ डिलीवरी वो भी कम हो। तो ये वहाँ पे ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो हम देखेंगे वो एक एक करके। तो ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात। अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात करेंगे। तो आर सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स इन द हाइपोथैलेमस। तो नॉर्मली ये जो हार्मोन्स है किसके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, तो वो एक्चुअली पोस्टीरियर ग्लैंड्स में फॉर्म नहीं होते हैं, वो हाइपोथैलेमस में फॉर्म होते हैं। हाइपोथैलेमस में फॉर्म होने के बाद फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड में, मेनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर रहते हैं। सो the body of the cells that secrete the posterior pituitary hormones are not located in the pituitary gland itself, but are large neurons called मैक्नोसेलुलर न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में ये फॉर्म होते हैं, उसके बाद सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोरेज का काम करते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे ये रिलीज होता है यहाँ से। सो दीज हार्मोन्स आर देन ट्रांसपोर्टेड इन द एक्सोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन्स, ना फाइबर पासिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एक्चुअली आप देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे डायग्राम होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब यहाँ पे देखो, तो एक्चुअल में हाइपोथैलेमस में ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस में ये फॉर्म होते हैं, बट हाइपोथैलेमस में फॉर्म होने के बाद ऐसे न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो न्यूरॉन्स का जो हेड है वो इस हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट रहता है, उसका जो टेल है वो इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट रहता है। तो हेड से फॉर्म होता है ये जो चीज़ें, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द इनफंडिबुलम, और इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर रहता है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब उस टाइम पे ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी उन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे न्यूरॉन्स रहते हैं, सेल्स नहीं रहते हैं, ठीक है। जो न्यूरॉन सेल रहते हैं, बट इसकी तरह अलग इंटीरियर पिट्यूटरी और की तरह अलग अलग सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहते हैं। वहाँ पे सिंगल सेल रहता है जो मेनली हाइपोथैलेमस से इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, किसको, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तो पहले ऐसे माना जाता था कि जो ये पिट्यूटरी है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता था, ठीक है। बट बाद में पता चला कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उस पे कंट्रोल है किसका, हाइपोथैलेमस का, ठीक है। तो पहले ऐसे माना जाता था कि जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो खुद हर हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, और ये जो बॉडी के ग्रोथ या डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। बट बाद में पता चला कि जो हाइपोथैलेमस है वो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। तो बाद में हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहा गया। तो अभी हाइपोथैलेमस प्लस पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों को मिला के क्या कहते हैं, उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। सो जो हाइपोथैलेमस है, विच इज़ द स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन बिलो द थैलेमस, इज़ द मेजर लिंक बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। जो ये हाइपोथैलेमस है वो जो ब्रेन के थैलेमस के नीचे प्रेजेंट रहता है, तो वो एक कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। सो सेल इन द हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज एटलीस्ट 9 डिफरेंट हार्मोन्स। तो अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करेंगे तो वो 9 डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट 7। तो 9 हार्मोन हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने होते हैं, 7 फॉर्म होते हैं, ठीक है। So together these hormones play important role in regulation of virtually all aspect of growth, development, metabolism and homeostasis। तो ये दोनों हार्मोन्स, एक तो हाइपोथैलेमस के और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इन दोनों का हार्मोन मिला के ये जितने भी एक्टिविटीज़ है उसको रेगुलेट करता है, जैसे कि ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मेटाबॉलिज्म है, और जो होम्योस्टेसिस है उन सबको ये कंट्रोल करता है। तो अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, तो जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें जो हार्मोन्स फॉर्म होते हैं, जो अभी हमने जो 6 हार्मोन्स की बात की थी या 5 हार्मोन की बात की थी, दैट इज़ द TSH
and FSH, LH and prolactin and adrenocorticotropic hormone, growth hormone। तो ये जो हॉर्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, वो किसके कंट्रोल में होता है? वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फिर वो हार्मोन्स जाके इंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है या उसको इनिशिएट करता है कि आप ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सको। तो यहाँ पे आप देखो, सिक्रेशन बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। सो those hormones are secreted within the hypothalamus itself and then conducted to the anterior pituitary through minute blood vessels called hypothalamic hypophyseal portal vessels। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द हाइपोफाइसियल पिट्यूटरी पोर्टल, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल वेसल। तो इसके थ्रू ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचता है। तो हाइपोथैलेमस में फॉर्म होता है वो हार्मोन्स, जो भी 9 हार्मोन्स अभी हम डिस्कस करेंगे, तो वो हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद वो एक्ट होता है कहाँ पे? यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके एक्ट करता है और इंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स को क्या करता है? इनिशिएट करता है या उनको एक्टिवेट करता है, ताकि आप वो जो 7-6 हार्मोन्स हमने पहले बताए थे उसको रिलीज़ करें। अब देखो, जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किया उनको हम क्या बोलते हैं? रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं या इनहिबिटरी हार्मोन बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? इट एक्ट ऑन द ग्लैंडुलर सेल्स, जो हमने यहाँ पे सेल्स पढ़े थे, सोमेटोट्रॉप्स या कॉर्टिकोट्रॉप्स, लेक्टोट्रॉप्स, उन पे जाके एक्ट करता है एंड कंट्रोल दिया सिक्रेशन। फिर उनके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है कि आपको हार्मोन प्रोड्यूस करना है कि नहीं। अगर बॉडी में ज़रूरत होगी तो वो प्रोड्यूस करेंगे, अगर बॉडी में ज़रूरत नहीं होगी तो वो उसको प्रोड्यूस नहीं करता है। सो द हाइपोथैलेमस रिसीव सिग्नल फ्रॉम मेनी सोर्स इन द नर्वस सिस्टम। तो हाइपोथैलेमस को ये जो सिग्नल आता है कि बॉडी को ज़रूरत है कि नहीं है, तो वो बहुत सारे सिग्नल्स के थ्रू आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में वाटर की कमी बहुत ज़्यादा, पहले हमारे बॉडी में वाटर की कमी थी। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर ग्लैंड है वहाँ से ACTH रिलीज हो गया, दैट इज़ द सॉरी ADH रिलीज हो गया, दैट इज़ द एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो हमारे बॉडी में यूरिन में जो वाटर लॉस हो रहा था वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो रहा है। अब वाटर हमारे बॉडी में रिटेन हो रहा है, तो अब वी डोंट नीड एनी वाटर। अब हमारा जो वाटर लेवल है बॉडी का वो हो गया है, मेंटेन हो गया है। ठीक है, तो अब हमारे बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन हो गया, तो जो हमारे बॉडी में जो वाटर लेवल को चेक करता है वो हमारे नर्वस सिस्टम पे या ब्रेन पे सिग्नल पहुंचाता है कि आप बॉडी को वाटर की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो सिग्नल है वो हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है। फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है? ACTH ADH का जो प्रोडक्शन है वो रोक देता है। जब ADH प्रोडक्शन रुक जाएगा तो अब वाटर यूरिन में से रीअब्जॉर्ब होना रुक जाएगा। तो हाइपोथैलेमस को कहीं से भी सिग्नल आ सकता है। ठीक है, from the nervous system. So hypothalamus is a collecting center for information concerning the internal well-being of the body, and much of this information is used to control secretion of the many globally important pituitary हॉर्मोन्स। तो हाइपोथैलेमस क्या है? एक कलेक्टिंग सेंटर है। ठीक है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँचता है कि आपकी बॉडी को क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होगी तो वो आपके इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उनको एक्टिवेट करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा और हार्मोन्स प्रोड्यूस करा देगा। ठीक है, अगर आपके बॉडी को हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं है तो हाइपोथैलेमस ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा जैसे कि इनहिबिटरी हार्मोन्स है, जिससे आपका जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और वो हार्मोन प्रोड्यूस करना रोक देगा। तो अगर हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स है, तो उसमें आप देखो यहाँ पे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। तो ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? ये जो थायरोट्रॉप सेल्स है इंटीरियर पिट्यूटरी में वहाँ पे एक्ट करेगा और वहाँ से थायराइड जो थायरोट्रोपिन्स है उसको रिलीज़ कराएगा। ठीक है, उसके बाद गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये गोनेडोट्रॉप्स पे एक्ट करेगा और FSH और LH का रिलीज़ कराएगा। अगर हम कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की बात करेंगे तो वो मेनली जो कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स है किसमें आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे वहाँ पे एक्ट करेगा और ACTH का रिलीज़ कराएंगे। ठीक है, उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो GnRH। ठीक है, तो ये एक्ट करेगा कहाँ पे? मेनली जो सोमेटोट्रॉप्स है वहाँ पे और आपके एंटीरियर पिट्यूटरी
ग्लैंड में से जो ग्रोथ हार्मोन है उसका रिलीज़ कराएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन दैट इज़ आल्सो कॉल्ड सोमैटोस्टैटिन। तो जैसे ही सोमैटोस्टैटिन रिलीज़ होगा तो ये सोमैटोस्टैटिन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे सोमैटोट्रॉप्स पे एक्ट करेगा और जो हार्मोन है दैट इज़ द ग्रोथ हार्मोन उसके रिलीज़ को रोक देगा। और दूसरा है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन जो इनहिबिटिंग हार्मोन है वो लैक्टोट्रॉप्स पे एक्ट करेगा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, और प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को वो इनहिबिट कर देगा या रोक देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 हार्मोन रिलीज़ होता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो ये एक तो है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हैं। और वहाँ पे दैट इज़ 2 और हार्मोन है दैट इज़ द एडीएच और ऑक्सीटोसिन। देन अब आप बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है। तो हम अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे तो विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोमेटोट्रोपिन। So this growth hormone is mainly produced by, देखा था हमने, that is the somatotropes. All the major anterior pituitary hormones except for growth hormone exert their principal effect by stimulating target glands. So growth hormone does not function through a target gland but exert its effect directly on all or almost all tissue of the body, ठीक है। तो सिर्फ ये ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, जो जिसका कोई टारगेट ग्लैंड नहीं है। जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसका टारगेट थायराइड ग्लैंड है। अगर हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ग्लैंड और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करेंगे तो उसका टारगेट ग्लैंड है दैट इज़ द गोनाड्स, टेस्टिस या ओवरी, ठीक है। अगर हम एसीटीएच की बात करेंगे तो उसका टारगेट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। अगर हम प्रोलैक्टिन की बात करेंगे तो उसका टारगेट है दैट इज़ द ब्रेस्ट। अगर हम दूसरा है दैट इज़ द और क्या बचा, अगर हम ACTH हो गया, TSH हो गया, मेलेनिन की बात करेंगे तो वहाँ पे मेलानोसाइट्स हैं, वो वहाँ पे जाके एक्ट करता है। तो बट ये जो ग्रोथ हार्मोन है उसका कोई प्रिंसिपल टारगेट या ग्लैंड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो ये मतलब इट डज़ नॉट फंक्शन थ्रू ए टारगेट ग्लैंड के थ्रू ये फंक्शन नहीं करता, बट इट एक्सर्ट्स इफेक्ट डायरेक्टली ऑन ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो हर टिश्यू है बॉडी का वहाँ पे जाके अपना एक्शन शो करता है। तो ये जो सोमेटोट्रॉप्स है, सोमेटोट्रॉप्स इज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ एसिडोफिलिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो कैसे रिलीज़ होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो इसका रिलीज़ होने से पहले हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज़ होता है दैट इज़ द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, GRNRH या GRH हम जिसको बोलते हैं। तो जब हाइपोथैलेमस से GRH रिलीज़ होगा थ्रू द हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू सोमेटो हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज़ होगा दैट इज़ द GRH रिलीजिंग हार्मोन। तो हमेशा याद रखना रिलीजिंग हार्मोन हमेशा हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। तो वो रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज़ होगा तो उससे क्या होता है, तो ये जो हमारा सोमेटोट्रॉप है सेल वो स्टिमुलेट हो जाता है एंड इट रिलीजेस द हार्मोन दैट इज़ द गोनेडोट्रोपिन, या सॉरी ग्रोथ हार्मोन वो रिलीज़ करता है। ओके, देन जब आप ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, व्हेन वी डोंट नीड एनी ग्रोथ हार्मोन, तो उस टाइम पे इसी हाइपोथैलेमस से और एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज़ द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन दैट इज़ द GRIH, या जिसको सोमेटोस्टैटिन स्टैटिन कहते हैं, ठीक है। दैट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ओके, सो ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे फैक्टर्स है जो ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, जैसे कि स्लीप है, स्ट्रेस है, पेन, कोल्ड या एनी सर्जरी, एक्सरसाइज है, फूड इनटेक है। तो ये सब क्या करते हैं आपके ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को
कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द लार्जेस्ट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स ओकर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ स्लीप। तो ऐसा देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन होता है वो कब होता है, जब आप सो जाते हो उसके बाद। सो ये एक जो हमारा एक कहावत है उसको ये सपोर्ट करता है कि अगर आप सोओगे नहीं तो आप आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन है या सोमेटोट्रोपिन जिसको हम बोलते हैं, तो इसे स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसमें 199 अमीनो एसिड से बना होता है, एक सिंगल चेन रहता है। सो इट कॉजेज ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी दैट आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग, ठीक है। तो मेनली ये क्या करता है, इट प्रमोट्स इंक्रीज साइज ऑफ द सेल, इंक्रीज माइटोसिस, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ सेल्स एंड सेल डिफ्रेंसिएशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। तो अगर हम इफ़ेक्ट देखेंगे इस ग्रोथ हार्मोन का, तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन का इफ़ेक्ट किस पे, ग्रोथ पे। तो आपको नाम से पता चल रहा है कि ग्रोथ हार्मोन मीन्स ये ग्रोथ कराता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ। तो मेनली ये उन फैक्टर्स को रिलीज़ कराता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं। तो मेनली ये जो ग्रोथ कराता है हमारे बॉडी का, तो कुछ ग्रोथ हार्मोन्स या कुछ फैक्टर्स के थ्रू ये ग्रोथ कराता है। तो उन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है IGF-1, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सोमेटोमेडिन C, ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द liver. So it causes growth by uh, activating the growth related फैक्टर्स लाइक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। तो इससे क्या होता है, आपका सेल डिफ्रेंशिएट होगा, सेल की ग्रोथ होगी। तो वैसे ही अगर हम इस ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट देखेंगे कि इस पे मेटाबॉलिज्म पे, मेनली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। सो जो ग्रोथ हार्मोन है इट हैज़ एन एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मीन्स ये प्रोटीन फॉर्म करता है। सो इट प्रमोट्स द अपटेक ऑफ अमीनो एसिड इन द टिश्यू एंड इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो टिश्यू से उनमें अमीनो एसिड का अपटेक ये इंक्रीज कर देता है, और जिसकी वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख उन्होंने लिखा हुआ है इंक्रीज रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, सो इनहेंस बॉडी प्रोटीन। तो अब उसके बाद हम देखेंगे, जैसे जितना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो इससे क्या होता है, तो जो नाइट्रोजन बैलेंस है, एक पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है, दैट लीड्स टू इंक्रीज इन द बॉडी वेट, ठीक है। तो जैसे प्रोटीन आपके बॉडी में इंक्रीज होगा, आपके मसल्स डेवलप होंगे। तो जैसे आपके मसल्स डेवलप होंगे तो आपका वेट इंक्रीज होगा। जैसे मसल्स डेवलप होगा आपका हाइट इंक्रीज होगा, तो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज होगा। आप बहुत मस्कुलेचर दिखने लगोगे, तो मीन्स आप में ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे अपना इफेक्ट दिखाता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये इंसुलिन का एंटागोनिस्ट है और एंड कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो ये बॉडी में जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। वो इंक्रीज़ कैसे करता है, बिकॉज द ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है मीन्स न्यू वहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से, ठीक है। डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो जो ग्लूकोज यूज़ होता है उसको ये कम कर देता है। इम्पेयर्स ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। एंड रिड्यूस द टिश्यू अपटेक ऑफ ग्लूकोज, और ग्लाइकोजिनोलिसिस भी ये रोक देता है। तो जितना हो सके ये ATP प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे ब्लड जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ कर देता है। तो आप यहाँ पे लिखा होगा देखो, डिक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ठीक है। देन अगर हम लिपिड मेटाबॉलिज्म पे इसका इफेक्ट देखेंगे, तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो मेनली लाइपोलिसिस करता है, दैट इज़ breakdown of the lipids, ठीक है, in the adipose tissue and increases the circulatory level of free fatty acid and their oxidation। तो ये लिपिड ब्रेकडाउन करता है और साथ में उन लिपिड का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो अभी हमने लिपिड ऑक्सीडेशन पढ़ा था, बीटा ऑक्सीडेशन। तो ये जितना बीटा ऑक्सीडेशन होगा उतना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें फैटी एसिड्स ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। इट इंक्रीजेस कीटोजेनेसिस पर्टिकुलरली इन डायबिटीज़, ठीक है। तो ये साथ में क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन केटोजेनेसिस करता है। मेनली अगर कोई डायबिटिक पेशेंट होगा उसमें केटोजेनेसिस आपको देखने को मिलेगा, ओके। सो इस तरीके से ये लिपिड मेटाबॉलिज्म पे अपना एक्शन शो करता है। अगर हम मिनरल मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, तो ग्रोथ हार्मोन प्रमोट्स बोन मिनरलाइजेशन एंड इट्स ग्रोथ एज क्लियरली ऑब्जर्व्ड इन द
ग्रोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। तो मिनरल जो मेटाबॉलिज्म है उस पे भी अपना इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो कैल्शियम अपटेक होगा और पोटेशियम अपटेक होगा, जिससे जो बोन्स है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। वहाँ पे ऑस्टियोक्लासिस होगा, ठीक है, दैट इज बोन फॉर्मेशन होगा, जिससे आपकी ग्रोथ फिर से बढ़ने लगेगी। ओके। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हेंसमेंट ऑफ अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, इन्हेंसमेंट ऑफ RNA translation to cause protein synthesis by the ribosome, increase nuclear transcription of DNA from RNA to form RNA, decrease catabolism of protein and amino acid। तो एनाबोलिज्म ज़्यादा होगा, कैटाबोलिज्म कम हो जाएगा। सो ऑल्सो दिस ग्रोथ हार्मोन इन्हेंस ऑलमोस्ट ऑल facets of amino acid uptake and protein synthesis by cell, while at the same time reducing the breakdown of प्रोटीन। तो प्रोटीन ब्रेकडाउन को वो रोक देता है और प्रोटीन फॉर्मेशन को ज़्यादा ये प्रेफर करता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिपिड्स के बारे में बता दिया है। तो कीटोजेनिक जो इफेक्ट है वो भी मैंने आपको बताया। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट पे जो इफेक्ट दिखाता है वो भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखो, इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन बाय द कोन्ड्रोसाइटिक एंड ऑस्टियोजेनिक सेल दैट कॉज बोन ग्रोथ। तो ये भी इसी ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। सो इंक्रीज रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ दीज सेल्स, ठीक है। ए स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग कॉन्ड्रोसाइट्स इनटू ऑस्टियोजेनिक सेल्स, दस कॉजिंग डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन्स। तो यहाँ पे भी बोन फॉर्मेशन में भी इस ग्रोथ हार्मोन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल कंसंट्रेशन देखेंगे ग्रोथ हार्मोन का, दैट इज़ 1.6 टू 3 mg/ml म्यूजी पर ml। अगर हम एडोलसेंट या चाइल्ड की बात करेंगे तो 7 μg/ml होना चाहिए, ठीक है। ये जो ग्रोथ हार्मोन है। सो आफ्टर एडोलसेंस सिक्रेशन डिक्रीज स्लोली विद एजिंग। तो जैसे अब एक एडोलसेंस स्टेज पे पहुंच जाओगे तो धीरे धीरे आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। आप खुद देखते हो, हम बोलते हैं कि 21 साल के बाद ग्रोथ रुकती है, ग्रोथ नहीं होती है। तो तब तक क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन है उनका जो प्रोडक्शन है वो एक नॉर्मल लेवल में होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप एडोलसेंस स्टेज पे पहुंच जाओगे तो इसकी जो रिलीज़ है वो कम हो जाता है, ठीक है, या ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है जो ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। दैट इज़, पहला है पेन हाइपोपिट्यूटेरिज्म। सो डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ ऑल द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है जी। ये पेन हाइपोपिट्यूटेरिज्म क्या है, तो जिससे क्या होता है, जितने भी सिक्रेशन है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के वो कम हो जाते हैं। सो इट मे बी ए कॉन्जिनाइटल, ठीक है, दैट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, और इट मे ऑकर सडनली और स्लोली एट द टाइम ड्यूरिंग लाइफ। तो ये तो या तो बिफोर बर्थ वो एज ए कॉन्जिनाइटल डिफेक्ट हो सकता है बच्चे में, या ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, या ड्यूरिंग द एज, ड्यूरिंग द लाइफ, ये स्लोली स्लोली उस पर्टिकुलर ह्यूमन में डेवलप हो सकता है। सो मोस्ट ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम ए पिट्यूटरी ट्यूमर दैट डिस्ट्रॉयज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मेनली अगर किसी को पिट्यूटरी ट्यूमर हुआ या कैंसर हुआ तो उसकी वजह से ये जो डिजीज़ है वो होने के चांसेस है, जिससे जो ग्रोथ हार्मोन्स है उसका जो, या जो भी हार्मोन्स है इंटीरियर पिट्यूटरी के, उनका सिक्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो पहला है दैट इज़ द डॉर्फिज्म। सो डॉर्फिज्म आप सबको पता है। सो डॉर्फिज्म इज कॉज्ड बाय द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। जब ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कम होगा तो वहाँ पे आपको डॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। मींस दैट इज़, वो जो पर्टिकुलर ह्यूमन है वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इट रिजल्ट फ्रॉम जनरलाइज डिफिशियंसी ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डेवलप इन अप्रोप्रिएट पोर्शन टू वन अनदर, बट द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज ग्रेटली डिक्रीज, ठीक है। तो जो ये डेवलपमेंट का रेट है वो क्या हो जाता है, ग्रेटली डिक्रीज हो जाता है। बट जो अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे तो वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में नॉर्मली डेवलप करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके जो लेग्स के जो बोन्स है वो ज़्यादा हैं आपके, बट आपके जो हैंड के बोन है वो शॉर्ट है, ऐसा नहीं है। जितना आपका लिम्स और
फोर लिम और हिंड लिम का प्रोपोर्शन होता है वैसे ही होगा, बट उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। जिससे आप जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट हो जाता है, आप शॉर्ट स्टेचर के दिखते हो, आप छोटे दिखते हो। ओके, सो ए चाइल्ड हु हैज़ रीच द एज ऑफ 10 years मे हैव द बॉडी डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड एज 4 to 5 years। तो ऐसे लगता है कि 10 साल का बच्चा 4 या 5 साल का बच्चा है। ओके, सो ए पर्सन विथ पेन hypopituitary dwarfism does not pass through puberty and never secretes sufficient quantities of gonadotropic hormones to develop adult sexual function। तो अगर किसी को पेन hypopituitary dwarfism हुआ है, मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स में डेवलपमेंट नहीं हुआ है और जो भी हार्मोन्स है वो रिलीज़ नहीं होगा, चाहे ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे एफएसएच हो या एलएच हो, कोई भी हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा, तो वो जो बच्चा है वो कभी प्यूबर्टी को क्रॉस नहीं कर पाता है और जो भी सेक्सुअल डेवलपमेंट उसमें होने चाहिए वो उसमें देखने को नहीं मिलता है, ड्यू टू द लैक ऑफ द हार्मोन्स। सो अगर हम बात करेंगे, इन 1/3 ऑफ द डॉर्फ्स ओनली ग्रोथ हार्मोन इज डिफिशिएंट, दिस पर्सन डू मैच्योर सेक्चुअली। अगर हम सिर्फ अगर उसके ग्रोथ हार्मोन में कमी होगी, बाकी सब हार्मोन्स नॉर्मल होंगे, तो सिर्फ उसके ग्रोथ में हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट सेक्सुअली वो मैच्योर होता है, ठीक है, तो वो एडल्ट में कन्वर्ट हो गया होता है, बट उसके जो स्टेचर है वो शॉर्ट रहता है। सो ट्रीटमेंट, हाउ वी ट्रीट दिस डिफिशिएंसी, हम उसको ग्रोथ हार्मोन्स दे देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो ग्रोथ हार्मोन जब हम प्रोड्यूस करेंगे बाय रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, तो हम डॉर्फ को भी वो हार्मोन के डोसेस देके उसको नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये जो डॉर्फिज़म है, अगर हम उसको इन अर्ली स्टेजेस अगर हमने उसको ट्रीट किया, तो वो जो डिफिशिएंसी है उसको अगर हमने पहले ही अर्ली एजेस में या अर्ली लाइफ में या अर्ली पीरियड में ट्रीट किया, तो वो ठीक हो सकता है। अगर हमने बाद में आफ्टर 21 या 20 के बाद हमने कोशिश करने ठीक करने की कोशिश की, तो वहाँ पे इट्स लाइक इम्पॉसिबल। देन पेन हाइपोपिट्यूटेरिज्म इन द एडल्ट, ठीक है, अगर हाइपोपिट्यूटेरिज्म हुआ किसमें, एडल्टहुड में, तो वहाँ पे क्या होता है, सो पेन hypopituitarism first occurring in the adulthood results from tumor that compress the pituitary gland until the functioning anterior pituitary cell is totally destroyed। तो अगर ट्यूमर वहाँ पे डेवलप हुआ तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। दैट इज थ्रोम्बोसिस ऑफ द पिट्यूटरी ब्लड वेसल, जो पिट्यूटरी ब्लड वेसल से उनका डिजनरेशन हो जाएगा। सो द जनरल इफेक्ट्स आर हाइपोथायरॉयडिज्म और सो लेथर्जिक पर्सन, डिप्रेस प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो जितने भी हार्मोन्स है वो वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए, इसका ट्रीटमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडेनोकॉर्टिको हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन। तो अभी जो हमने देखा दैट इज द हाइपोपिट्यूटेरिज्म, या अगर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम हुआ, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन पे क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होगा। तो आपको वहाँ पे और एक केस देखने को मिलेगा, दैट इज़ द जिजेंटिज्म। सो जिजेंटिज्म इज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड दिस इज ऑब्जर्व बिफोर द एपिफाइसल प्लेट्स क्लोज, ठीक है। जो एपिफाइसल प्लेट्स है वो क्लोज होने से पहले जो बोन है वो उनमें ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको एक एक्रोमेगाली जो कंडीशन है वो भी देखने को मिलता है। सो एक्रोमेगाली ऑकर्स आफ्टर एपिफाइसल क्लोजर। अगर एक्रोमेगली हुआ, एक्रोमेगली कब होगा, जब एपिफाइसल क्लोजर हो जाने के बाद आपको एक्रोमेगली देखने को मिलेगा। दैट इज़ आपकी जो ये पर्सन होगा जिसमें ये जो एक्रोमेगली हुआ है उसके हाथ बहुत बड़े रहते हैं, ठीक है। तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बोन जो साइज़ है वो बहुत बड़े रहते हैं। सो उसका जो फेस है वो बड़ा दिखता है आपको, उसके जो हाथ का साइज़ है वो बड़ा दिखता है, उसका नोज़ बड़ा दिखता है और उसके जॉस क्या है, प्रोट्रूडिंग जॉस है, आपको उसके जॉस ऐसे लटके हुए दिखेंगे, ठीक है। एक्सेसिव हेयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और जो स्किन है वो बहुत थिक हो जाता है, ठीक है। तो किसमें, इस एक्रोमेगाली में जो एपिफाइसल क्लोजर के बाद होता है। अगर एपिफाइसल क्लोजर से पहले हुआ तो हमको वहाँ पे गिगेंटिज्म देखने को मिलेगा, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी रहती है, ठीक है, बट उसके जो फीचर्स है वो नॉर्मल रहते हैं, बट उसकी हाइट बहुत लंबी रहती है, चाहे क्योंकि जो बोन्स है, थाई बोन्स है, हैंड बोन्स है, वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। तो गिगेंटिज्म और एक्रोमेगली में यही डिफरेंस है।
थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रोथ हार्मोन एंड द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बाकी जो रिमेनिंग हार्मोन्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।